नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start the class of the day. This is what section number 105. We have completed from the section 100 to 104. Now we are going to begin with the section 105. Very important for your prelims, not important for your mains. In mains के लिए important नहीं है, prelims के लिए important है. तो you don't need to cram it. You don't need to learn verbatim this. केवल की पॉइंट देखने. इसका जो मार्जिनल नोट है, यू शुड रिमेंबर दैट पनिशमेंट फॉर कल्पिट होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन था आईपीसी में, दैट वाज सेक्शन 304. यहां पर काम की बात क्या है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन, आप जाइए पहले 100 पर जाइए. सेक्शन 100 डिफाइंड कल्पेबल होमिसाइड, राइट? एंड प्लीज सी दिस. सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड इक्विवेलेंट सेक्शन 299 आईपीसी. यहां पर देखिए, this was the definition of this: whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. सेक्शन 100 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था. ये सेक्शन 100 डिफाइंस व्हाट? कल्पेबल होमिसाइड. ये क्या कहता है कि whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है. एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेंस रियाज. नंबर 1 है with the intention of causing death, उसका मृत्यु करने का आशय हो, या with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, या उसका आशय ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का हो जिससे मृत्यु होना संभव हो, और with the knowledge that he is likely by such act to cause death, कि वह ऐसा ज्ञान रखता हो कि उसके कार्य से मृत्यु होना संभव है. इसमें काम की बात यह है कि there are 2 intention clauses. First is what? The intention to cause death. Second is what? Intention to cause bodily. And third clause is what? The knowledge clause. So you will see ये 304 में, 304 में there are 2 paragraphs. There are 2 paragraphs essentially. वहां पर ये punishment है. Punishment for culpable homicide is different for these clauses. For the purpose of the punishment, intention clauses अलग रहेंगी और नॉलेज क्लॉज अलग रहेगी पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. समझे आप? तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 304 आईपीसी, और यू कैन से 105A. देखिए, पढ़ लेते थोड़ा इसको. Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life, number 1, or with the imprisonment for either description for a term which shall not be less than 5 years, P for prelims लगाइए, but which may extend to 10 years. पहला पनिशमेंट ये है. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 years but which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. and प्लस फाइन हो गया. तो 3 बातें हो गई. नंबर 1 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नंबर 2 मिनिमम 5 years अप टू 10 years, एंड प्लस फाइन. ये लेकिन कब होगा? इफ द एक्ट इज बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. इट मींस, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 105 है, ये 105 और 304 आईपीसी. सेक्शन 100 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड. उसके 3 क्लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. समझ पा रहे हैं आप लोग? जो पहली 2 क्लॉज हैं वो कौन सी क्लॉजेस हैं? इंटेंशन क्लॉज हैं. सेक्शन 100 का पनिशमेंट कहां दिया गया है? 105 में. 345 से बोल दो कंफ्यूज करने के लिए. एक तो वैसे ही आईपीसी में और इसमें गड़बड़ चलता रहता है, अभी वो माइंड ट्यून अप हुआ नहीं है. 105 में तो जो फर्स्ट
टू जो क्लॉजेज है, इंटेंशन क्लॉज है, इसका पनिशमेंट है, ये आपको प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। क्या है? लाइफ, LI हो गया, मिनिमम 5 years और अप टू 10 years इम्प्रिजमेंट एंड प्लस फाइन हो गया। यू गॉट इट। थर्ड क्लॉज क्या है? वो है आपकी नॉलेज क्लॉज। ये हो गई नॉलेज क्लॉज। इसका पनिशमेंट और देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, पहले वाला जो 304 था उसमें मिनिमम 5 years का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब यहां पर क्या करते हैं, इन्होंने मिनिमम 5 years कर दिया। जो फर्स्ट का 304 था उसमें मिनिमम नहीं था, अब इन्होंने इसमें मिनिमम का एड ऑन कर दिया। तो इतना कंपैरेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अब नया वाला ध्यान रखना बस आपको भी, ठीक। नॉलेज क्लॉज में कितना है देखो, उसमें भी और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन। बस अगर नॉलेज क्लॉज में है सर व्हाट इज द ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म मीन, अच्छा हर्ष ये कहना है कि ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या, वो भी समझाता हूं आपको मैं। तो अब क्या, अगर नॉलेज क्लॉज में है तो आपका पनिशमेंट कितना होगा? ओनली फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू। यहां पर क्या चेंजेस हैं? चेंजेस क्या, एक तो मिनिमम नहीं है, यहां पर नो मिनिमम पनिशमेंट इज देयर। सो यहां पर अब देखो, कोई भी गुड एडवोकेट होगा तो एटलीस्ट अगर उसको ये आइडिया हो जाएगा कि उसका जो क्लाइंट एक्यूज है उसका कन्विक्शन तो होना ही होना है, तो एटलीस्ट ही वुड लाइक टू ब्रिंग हिज केस अंडर द क्लॉज 3rd, है ना, नॉलेज क्लॉज। तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही 10 years का है और कोई मिनिमम प्रिस्क्राइब नहीं है। देन ही कैन सीक मर्सी that he is a student, he is the first time offender, whatever this is that, so it may he may punish for 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year करके इस तरीके से। तो ये कि काम की बात थी, आपको प्रीलिम्स में ही आएगी, मेंस में नहीं आएगी। कहाँ पर प्रीलिम्स का लगा लीजिए आप लोग, 105 पर लिख लीजिए P4 प्रीलिम्स, यहाँ की हेडिंग से क्वेश्चन आपको आएगा। इन ये इसमें खास बात क्या है, इसमें 2 क्लॉज है ना, तो उसके लिए अलग से अपना इनका पनिशमेंट को याद कर लीजिए। यहाँ से प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।